السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس کلاس میں ہم لوگ لسانیات کے تعلق سے معروضی سوالات حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا پہلا سوال ہے، جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے رقبے پر کون سی زبانیں قابض ہیں؟ کون سی زبانیں قابض ہیں؟ جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے رقبے پر کون سی زبانیں قابض ہیں؟ ہند آریائی، ایرانی، دیوناگری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، ہند آریائی زبان جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے رقبے پر قابض ہے۔ اور ہند آریائی زبانوں کو استعمال کرنے والے ملکوں میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، اسی طرح سری لنکا اور مالدیپ کے جزائر وغیرہ شامل ہیں۔ اور ان جزائر میں تقریباً 640 ملین لوگ ہند آریائی زبان بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں کہاں کے لوگ ہند آریائی زبان بولتے ہیں؟ ابھی بات آئی تھی کہ ہند آریائی زبان کو استعمال کرنے والے کہاں کہاں کے لوگ ہیں، تو اس میں سبھی آ جائے گا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی، بنگلہ دیش۔ یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش آپشن میں ہے، تو ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی نیپال، سری لنکا اور مالدیپ وغیرہ آتے ہیں جو ہند آریائی زبانوں کو ہند آریائی زبان بولتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ہند آریائی زبان بولنے والے کی تعداد کیا ہے؟ ابھی بتائے تھے 600 ملین لوگ 600 ملین لوگ جو ہے ہند آریائی زبان بولتے ہیں۔ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 600 ملین لوگ، یاد رکھنے کی ہے کہ 600 ملین لوگ ہند آریائی زبان بولتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، درج ذیل میں ہند آریائی سے تعلق رکھنے والی زبان ہے۔ ہند آریائی سے تعلق رکھنے والی زبانوں میں کون کون سی زبان آتی ہے؟ اردو اور ہندی، بنگلہ اور پنجابی، مراٹھی اور سندھی، درج بالا میں سے بھی کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا، کیونکہ درج بالا میں سبھی جو ہے اردو اور ہندی، بنگلہ، پنجابی، مراٹھی اور سندھی سبھی کے سبھی جو ہے ہند آریائی زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ سب زبان ہند آریائی زبان سے نکلی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہند آریائی زبانوں سے تعلق رکھنے والی زبان ہے، ہند آریائی سے تعلق رکھنے والی زبان ہے، وہ اردو، ہندی، بنگلہ اور پنجابی، مراٹھی اور سندھی کے علاوہ اڑیا بھی ایک زبان ہے۔ اسی طرح آسامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اڑیا کو اڑیسہ کو اڑیا بولا جاتا ہو، اور آسامی کو آسامیہ بولا جاتا ہے۔ سنہالا بھی ایک زبان ہے جو ہند آریائی سے تعلق رکھتا ہے۔ دردک بھی ایک زبان ہے جو ہند آریائی سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح سے گجراتی، کشمیری، کونکی، میتھلی، ماگھی، کانگڑو، ڈوگری، یہ سب جو زبانیں ہیں، یہ سب کے سب ہند آریائی زبانوں سے ہند آریائی زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر سے دوہرا دیں کہ ہند آریائی زبان سے جو تعلق رکھنے والی زبان ہے وہ ہے ہندی، بنگلہ، پنجابی، مراٹھی، اردو، اڑیا یعنی اڑیسہ،
सिंधी, सिंध यानी सिंधी, सिंध जो भी हो। इसी तरह से आसामी, आसामिया कहा जाता है इसको। सनहाला नेपाली, दर्दक गुजराती, कश्मीरी, कोनकी, मैथिली, माघी, कांगड़ू, डोगरी वगैरह, ये सब ज़बानें हिंद आर्याई से ताल्लुक़ रखती है। अगला सवाल है, दर्ज झेल में देवनागरी रस्मुल ख़त से ताल्लुक़ रखने वाली ज़बान है। देवनागरी एक रस्मुल ख़त है, उससे जो ताल्लुक़ रखती है, यानी कि देवनागरी रस्मुल ख़त में कौन सी ज़बानें लिखी जाती है? हिंदी, नेपाली, मराठी, दर्जबाला में सभी, दर्जबाला में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसलिए क्योंकि हिंदी, नेपाली और मराठी ये सभी के सभी जो है देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखे जाते हैं। हिंदी, नेपाली, मराठी देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखा जाता है। और इसके अलावा जो ज़बान आती है जो देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखे जाते हैं वो है संस्कृत, और इसके अलावा भी जो यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो नेपाली, हिंदी, मराठी और संस्कृत ये सब ज़बानें देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखा जाता है। सवाल अगर इस तरह से आए तो वहाँ पे ये चारों ज़बानें आपके जहन में होना चाहिए। हिंदी, नेपाली, मराठी और संस्कृत देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखा जाता है। अगला सवाल है, दर्ज झेल में ब्राह्मी, ब्राह्मी रस्मुल ख़त से ताल्लुक़ रखने वाली ज़बान है। ब्राह्मी रस्मुल ख़त से ताल्लुक़ रखने वाली ज़बान कौन सी है? बंगला, आसामी, अड़िया यानी उड़ीसा, दर्जबाला में सभी, दर्जबाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसलिए कि आसामी जो है ब्राह्मी रस्मुल ख़त से ताल्लुक़ रखने वाली ज़बान बंगला, आसामी, अड़िया ये सभी के सभी जो है ब्राह्मी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। बंगला, आसामी, अड़िया, इसमें सनहाला भी जो है आता है ब्राह्मी रस्मुल ख़त से ताल्लुक़ रखने में। बंगला, आसामी, अड़िया और सनहाला ये सभी के सभी ब्राह्मी रस्मुल ख़त में लिखा जाता है। अगला सवाल है, दर्ज झेल में अरबी रस्मुल ख़त से ताल्लुक़ रखते हैं। जो रखने वाली ज़बान है क्या है? कश्मीरी, सिंधी, उर्दू, दर्जबाला में सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसलिए कि कश्मीरी, सिंधी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, उर्दू ये सभी के सभी ज़बानें अरबी रस्मुल ख़त में लिखे जाते हैं। सभी के सभी ज़बानें अरबी रस्मुल ख़त में लिखे जाते हैं। तो डी इसका सही जवाब होगा। आठवां सवाल है, पंजाबी किस रस्मुल ख़त में लिखे जाते हैं? पंजाबी किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? गुरुमुखी, फारसी, हिंदी, एक से ज़ायद, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। देवनागरी जो है ये पंजाबी गुरुमुखी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है पंजाबी ज़बान। नौवां सवाल है, कौन की ज़बान लिखने में किस रस्मुल ख़त का इस्तेमाल किया जाता है? कौन की ज़बान ये भी एक हिंद आर्याई ज़बान है। कौन की ज़बान ये भी हिंद आर्याई ज़बान है। कहा जा रहा है कि कौन की ज़बान लिखने में
किस रस्म उल खत का इस्तेमाल किया जाता है? गुरुमुखी, फारसी, रोमन, दर्ज बाला में इसे एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि रोमन रस्मुल खत में कौन की ज़बान, जो हिंद आर्याई ज़बान की ही एक ज़बान है निकली हुई, वो रोमन में लिखा जाता है। रोमन में लिखा जाता है। हिंद आर्याई ज़बानों से बहुत सारी ज़बानें निकली हैं और सभी के सभी अलग अलग रस्मुल खत में लिखे जाते हैं। हिंद आर्याई ज़बानों से कितनी ज़बानें निकली थी, वो सभी के सभी आपके सामने हम गिना दिए, और उसके अलावा सभी का बंटवारा हो गया कि अलग अलग रस्मुल खत में सभी लिखे जाते हैं। रस्मुल खत में देवनागरी आ गया, इसी तरह से बराहमी, अरबी, गुरुमुखी, रोमन, ये सभी के सभी रस्मुल खत अलग अलग ज़बानों के लिए इस्तेमाल हुए। 10वां सवाल है, रॉबर्ट कार्लडवेल ने हिंद आर्याई को किसकी शाख माना है? रॉबर्ट कार्लडवेल ने हिंद आर्याई को किसकी रस्मुल खत माना है? हिंद आर्याई को, हिंद आर्याई ज़बानों से, हिंद आर्याई से तो बहुत सारी ज़बानें ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हिंद आर्याई को किसकी शाख माना है? किसकी शाख माना है? इंडो यूरोपी, हिंद ईरानी, द्राविड़ी, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। रॉबर्ट कार्लडवेल ने इंडो यूरोपी को हिंद आर्याई को इंडो यूरोपी की शाख माना है। हिंद आर्याई को किसकी शाख माना है? इंडो यूरोपी की शाख माना है हिंद आर्याई को। अगला सवाल है, तादाद के लिहाज से पांचवा सबसे बड़ा खानदान कौन सा है? तादाद के लिहाज से पांचवा सबसे बड़ा खानदान कौन सा है? तो वो है इंडो यूरोपी ये पांचवा सबसे बड़ा खानदान है। और इसके बारे में कहा जाता है नहीं, पांचवा सबसे बड़ा खानदान में आ जाएगा द्राविड़ी जबान। पांचवा सबसे बड़ा खानदान जो है वो द्राविड़ी जबान है, जो इसके बारे में कहा जाता है कि ये कम से कम 36 जबानों पर मुश्तमिल है। द्राविड़ी जबान 36 जबानों पर मुश्तमिल है, जो बुनियादी तौर पर जनूबी एशिया में बोली जाती है। द्राविड़ी जबान बुनियादी तौर पर जनूबी एशिया में बोली जाती है और ये 36 जबानों पर मुश्तमिल है, जो पांचवा सबसे बड़ा खानदान कहलाता है। अगला सवाल है, रॉबर्ट कार्लडवेल के मुताबिक